Hello, good morning everyone. I am Arvind Sani, spot in front of you all on RSM Classes YouTube channel. In last video, we learned about chemical change or identification of chemical reaction. In this video, we learned about chemical equation. So let's start this video. Chemical equation. First of all, we know about chemical equation. First question arise here. What is chemical equation? The symbolic representation of the chemical reaction are called chemical equation. The symbolic representation of a chemical reaction are called chemical equation, or we can say that केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स और फॉर्मूलाज के रूप में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड C प्लस O2 CO2। तो ये क्या हो गया? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया इनका। जो भी इसके एलिमेंट्स थे, एटम्स थे, उनको क्या कर दिया? उनके सिंबल्स या फॉर्मूलाज के रूप में अपन ने यहां क्या कर दिया? राइट कर दिया। तो ये तो क्या है? वर्ड इक्वेशन। ये तो क्या है? वर्ड इक्वेशन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, इससे क्या है? ये वर्ड इक्वेशन। और इसको अपन ने क्या लिख दिया? ये क्या है? केमिकल इक्वेशन। नाउ we learn about writing a chemical equation. Writing a chemical equation. In this, first of all, we know about reactant. What is reactant? The substance which are participate in chemical reaction are called reactant. It see here, carbon and oxygen, these are participate in this chemical reaction, so these are reactant. Next, product. What is product? The substance, yeah, we can say that the new substance which are formed during the chemical reaction are called product. The new substance which are formed during a chemical reaction are called product. In this reaction here, carbon dioxide are formed, then carbon dioxide is product. Carbon dioxide is product. Next, third point, between reactant and product. Between reactant and product. Between reactant and product placed arrow sign.
प्लेस्ड एरो साइन। इट मीन्स देखो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसके बीच में अपन ने क्या यूज किया है, एरो साइन का यूज में लिया है। दीज एरो साइंस टुवर्ड्स विथ प्रोडक्ट, किसकी तरफ है, ये प्रोडक्ट की तरफ होता है, ठीक है। और ये जो एरो साइन है, ये एरो साइन अपने को किसके बारे में बताता है, ये एरो साइन अपने को केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को शो करता है कि रिएक्शन जो है वो किस तरफ कंप्लीट हो रही है। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट हियर, reactants are written in LHS side of the arrow, ठीक है। ये एरो है, इस एरो के LHS साइड में क्या लिखा जाता है, रिएक्टेंट, एंड RHS यानी राइट हैंड साइड क्या लिखा जाता है, प्रोडक्ट विथ प्लस साइन, ठीक है। इट मींस वन और कि यहां पर जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट जब एक से ज्यादा हो, मोर देन वन हो, तब अपन किसका उपयोग करते हैं, इनके बिटवीन प्लस साइन का यूज में लेते हैं। ओके, और इसी प्रकार यदि प्रोडक्ट जो है वो मोर देन वन हो तो उनके बिटवीन भी किसका यूज किया जाएगा, प्लस साइन का यूज में लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट वी लर्न अबाउट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल a question arise here कि why is necessary to balance chemical equation। question, why is necessary to balance chemical equation। okay, so this question's answer here, due to the law of conservation of mass, law of conservation of mass, the law of conservation of mass you studied in earlier class in 9th। okay, this law state that, यानी कि अपन ने क्या कहा, due to the law of conservation of mass which states that mass neither be created nor be destroyed during a chemical reaction। okay, you studied in earlier classes कि what is the law of conservation of mass। the law of conservation of mass क्या कहता है कि जो मास है वो ना तो रिएक्शन के दौरान, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मास को क्या किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, और ना ही मास को क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट मींस मास जो है वो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान कंजर्व रहता है, ठीक है। ओके, और अपन इन अदर वर्ड्स क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स the number of atoms of different elements, ठीक है, the number of atoms of different elements are
remain same before and after chemical reaction। इसी को अपन अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स है, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। ओके, सो वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और या अपन कह सकते हैं टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ओके, दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था कि जो केमिकल इक्वेशन है उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों आवश्यक है। तो इसका अपन ने आंसर तो था, जो था वो अपन ने जान लिया यहां पर। नाउ अब अपन आगे पढ़ेंगे। अपन ने जो अभी पढ़ा है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों आवश्यक है, इसके बाद में अपन जानते हैं आगे। देखो एक एग्जांपल के साथ में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके फॉर्म होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, Mg प्लस O2 रिएक्ट करके फॉर्म होता है MgO। ओके, हियर देखो, ये तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या होती है, वर्ड इक्वेशन। अब हियर दिस रिएक्शन इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मास नॉट सेम, कि यहां देखो रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स हैं उनका मास क्या है, सेम नहीं है। नंबर ऑफ एटम्स क्या नहीं है, सेम नहीं है। देखो हियर इन रिएक्टेंट्स ऑक्सीजन आर 2 एंड इन प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन इज 1, सो these reactions are unbalanced and these unbalanced reactions are called skeletal केमिकल इक्वेशन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इस स्केलेटल केमिकल रिएक्शन को अपन क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जानते हैं कि मास के बारे में। देखो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर होता है 12 है और इसका एटॉमिक मास होता है 24। हियर ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और एटॉमिक मास कितना होता है 16। यहां देखो ऑक्सीजन 2 है इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, कितना होगा 32। तो 24 प्लस 32 यहां क्या हो गया, इक्वल 56। एंड हियर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का 24 प्लस ऑक्सीजन का 16, 40। तो यहां देखो मास क्या है, सेम नहीं है। यहां तो कितना है, रिएक्टेंट्स का तो 56 है और प्रोडक्ट का कितना है 40 है, इसलिए ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आफ्टर देन व्हेन, जब इस रिएक्शन को अपन बैलेंस कर देते हैं तो देखो 2Mg प्लस O2 रिएक्ट करके फॉर्म हो गया 2MgO। ओके, अब यहां देखो, यहां नंबर ऑफ एटम सेम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। देखो यहां मैग्नीशियम 2 है, यहां भी मैग्नीशियम 2 है, यहां ऑक्सीजन 2 है, यहां पर भी ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो देखो आगे, अब यहां इसका अपन मास निकालते हैं तो देखो मैग्नीशियम का कितना होता है 24 इंटू 2 इज इक्वल टू 48 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। ठीक है, अब देखो 48 प्लस 32 तो कितना हो गया
80 एंड सेम इधर देखो मैग्नीशियम 2 है तो 24 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2 है तो 16 इंटू 2 तो कितना हो गया देखो 48 प्लस 32 इज इक्वल टू 80. In this equation, the mass of reactant and product are same. So these reactions are balanced chemical equation. Balanced chemical equation. Okay. Now we learn about heat and trial method. जो केमिकल इक्वेशन होती है इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का जो मेथड है उस मेथड को क्या कहा जाता है, उस मेथड का क्या नाम है, हीट एंड ट्रायल मेथड. हीट एंड ट्रायल मेथड. इस हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या किया जाता है कि जो केमिकल इक्वेशन है उस केमिकल इक्वेशन में जो एलिमेंट्स या जो कंपाउंड होते हैं उन कंपाउंड के बाहर होल नंबर्स में डिजिट लिख करके और क्या किया जाता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है. जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के माध्यम से अपन उस हीट एंड ट्रायल मेथड को समझते हैं. तो देखो अपनी बुक का एक एग्जांपल है Fe प्लस H2O रिएक्ट करके फॉर्म होता है Fe3O4 प्लस H2. ओके, ये अपनी जो बुक है उसका एक एग्जांपल है. इसको अपन हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं. तो बैलेंस करने के लिए इसकी क्या है, सेवरल स्टेप्स हैं. तो देखो फर्स्ट स्टेप की अपन बात करते हैं. स्टेप फर्स्ट में अपन बात करते हैं. तो स्टेप फर्स्ट में क्या कहा गया है कि ये जो केमिकल इक्वेशन है उसमें जो भी एलिमेंट और जो कंपाउंड है उनके चारों ओर क्या बना देते हैं, बॉक्स बना देते हैं. ठीक है, और डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेज, यानी इन बॉक्सेज के अंदर जो है वो अपने को कोई चेंज नहीं करना है. जो भी अपने को चेंज करना है वो चेंज इन बॉक्सेज के बाहर करेंगे और वो भी किस में लिखेंगे, डिजिट्स में, होल नंबर्स में अपन क्या लिखेंगे, यहां डिजिट्स लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट स्टेप 2. स्टेप 2 में अपने को क्या करना है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड. ओके, तो देखो यहां पर ने लिख दिया एलिमेंट, फिर एलिमेंट के बाद में ये हो गई LHS साइड रिएक्टेंट और ये हो गई RHS साइड. ठीक है, अब देखो एलिमेंट क्या है, Fe, उसके बाद में हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट है. अब देखो Fe रिएक्टेंट साइड कितना है, 1, और RHS साइड में कितने हैं, 3. इसी प्रकार हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट साइड 2 एंड प्रोडक्ट साइड 2. ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड कितना है, सिंगल 1, और जो प्रोडक्ट साइड है वहां कितना है, 4. तो ये अपन ने क्या बना ली, लिस्ट बना ली स्टेप सेकंड में कि जो भी एलिमेंट्स इस रिएक्शन के अंदर है उन रिएक्शन में अपन ने जान लिया कि रिएक्टेंट साइड जो एलिमेंट्स हैं वो कितने नंबर है और RHS साइड में इनके नंबर कितने हैं, कितने एटम्स जो है वो प्रेजेंट है. अब अपन इनको क्या करेंगे, 1 बाय 1 इनको बैलेंस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन उस एलिमेंट को लेंगे जो जिसकी क्या हो, मैक्सिमम नंबर हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन बात करें कि यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन देखो यहाँ RHS साइड में उसकी नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4 है, और
LHS साइड में कितना है 1 है। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल किसको लेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे और इस ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो देखो स्टेप थर्ड में अपन क्या करेंगे, ये लिया Fe, बॉक्स बना हुआ है, H2O, फिर Fe3O4 प्लस H2। तो यहां देखो अपने को सबसे पहले किसको बैलेंस करना, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहां कितना है 1 है, इधर कितना है 4 है। मैंने क्या कहा आपको, फर्स्ट अपन ने स्टेप फर्स्ट में क्या पढ़ा कि डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेज, कि इन बॉक्सेस के अंदर अपने को कोई चेंज नहीं करना है, जो चेंज करना है वो अपने को इसके बाहर करना है। तो यहां देखो, यहां पर इसको क्या कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देखो यहां पर ऑक्सीजन 4 हो गए और इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए 4 हो गए। अब अपन नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, स्टेप 4 में अपन बात करते हैं। तो स्टेप 4 में अब देखो अपने पास 2 एलिमेंट रह गए, एक तो रह गया Fe और दूसरा क्या रह गया हाइड्रोजन। तो अब अपन सबसे पहले यहाँ किसको बैलेंस करते हैं, इनमें से कोई एक लो और उसको बैलेंस करना है। तो यहाँ अपन किसको लेते हैं, हाइड्रोजन को। किसको बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को। अब देखो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन की नंबर कितने हैं, LHS साइड में 8 है और RHS साइड में कितना है 2 है। तो इस 2 को भी कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 4 से, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो मैं यहां लिख दूं 4, ये लो। तो अब क्या हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब आफ्टर देन अपन किसकी बात करते हैं, स्टेप 5। और स्टेप 5 में अपन बात करते हैं यहाँ किसकी, कौन सा अनबैलेंस्ड एलिमेंट रह गया Fe। तो अब Fe की बात करते हैं। तो देखो Fe LHS साइड में कितना है Fe 1 और इन RHS साइड 3। तो LHS साइड में क्या कर दिया जाए, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहां अपन इससे पहले क्या लिख देते हैं 3। तो अब ये इक्वेशन क्या हो गई, देखो बैलेंस हो गई। लेकिन फिर भी स्टेप 6 जो है वो स्टेप 6 क्या करती है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अपने को वापस से क्या कर लेना है, चेक कर लेना है कि कोई जो एलिमेंट है वो अनबैलेंस्ड नहीं रह जाए। ठीक है, तो अपन इसको क्या कर लेते हैं, चेक कर लिया और चेक करने के पश्चात इसको एज इट इज लिख देते हैं। तो अपन ने इसको लिख दिया 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। अब ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो इसको लिख दिया अपन ने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, ये क्या हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेप जो है स्टेप 7 में अपने को क्या करना है, राइट फिजिकल स्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन ये जानते हैं कि व्हाट इज फिजिकल स्टेट क्या है। जैसे कि यू में स्टडी अबाउट फिजिकल स्टेट इन क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस। ओके, सॉलिड को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, यहां पर S से, लिक्विड को L से, गैस को G से और एक्वस को AQ से। इन दिस रिएक्शन यहां देखो, यहां क्या है Fe है। Fe तो क्या होता है, मैं इसी में लिख देता हूं। Fe क्या है, यहां लिखेंगे इसके नीचे। ओके, तो Fe क्या है, सॉलिड है, तो इसलिए इसको यहां क्या लिख दिया S, क्योंकि आयरन सॉलिड होता है। नेक्स्ट यहां देखो H2O। अब H2O जो है, वाटर जो है, ये वाटर तीनों फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। तो यहां जो Fe जो है वो जिस वाटर के साथ में रिएक्शन करता है वो कौन सा वाटर है,
गैस के साथ में। ओके, और यहां जो बन गया Fe3O4, यानी जो आयरन है उस आयरन के ऊपर क्या बन जाती है, एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, जिसे अपन सामान्य लैंग्वेज में बोलते हैं जंग या रस्ट। ओके, तो ये भी क्या होता है, सॉलिड, और साथ में क्या बनी है, गैस। तो गैस को किस से रिप्रेजेंट करेंगे, जी से। ओके, टुडे वी नो अबाउट केमिकल इक्वेशन। Finally, I leave you some questions which are solved by this method. Thank you.